When did peace become a product? Everybody of us cannot be super successful. When did they started packaging and selling you bliss? When the leaders have become typical takers and they are no more givers. Unchecked, a guru can dupe you or commit a fraud on the name of healing. हम कभी कभी स्पिरिचुअलिटी पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम और किसी चीज को देख ही नहीं पाते। आज के डेट में अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखें तो लोग बोलेंगे आप 10 दिन के अंदर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो। So instead of laying our faiths on crystal, stone, healing practices and gurus, we should rather lay that faith first on ourselves. In 1978, a horrifying tragedy happened. Over 900 people were coerced into drinking cyanide-laced Kool-Aid drink, resulting in the largest mass suicide of modern history. Jim Jonas, a charismatic leader of People's Temple, blended religion and capitalism masterfully. That created a terrifying empire. He manipulated his followers to donate their wealth, their income, their savings, in order to create an empire that will be led by God. But instead, he fueled all that wealth into creating his personal empire. Now, in order to hide that scam, the only way was to kill those people. And then happened the mass suicide in the name of greatest sacrifice for a greater good. Hello all, I am Dr. Shubhi Mack along with my colleague Mr. Shivam Pandey. We welcome you all to our new episode of Sacred to Sold, a art of selling spirituality. Now imagine a little child asking what is spirituality and you say that it's an inner walk. You try to understand your inner feeling and it's all about peace. Just think that child grows up and again asks that what's spirituality? And he gets an ad that learn about spirituality under rupees 999. Guaranteed chakra healing in just 3 sessions. So wait, when did peace become a product? When did they started packaging and selling you bliss? So with this podcast, we'll try to understand how spirituality is being packaged and sold to you. So now we first need to understand what is spirituality. Spirituality is simple. It is the search for meaning. It is the question that has been asked, who am I? Why am I here? It does not have any price tag. It cannot be bought or sold. What is it? It is simple. It lives in silence, in truth, in love. It can be religious or it cannot be religious at all. It can be about God or it can just be about being kind and conscious. Carl Jung, a famous psychoanalyst, defined spirituality as a search for meaning that connects the psyche of a human to the greater cosmos. He says it is a necessity that a person needs to feel in order to achieve that wholeness and individuation. उनका यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जैसे हमें लाइफ में कभी ना कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे लिए एक नेसेसिटी होती है, उसी तरीके से कभी ना कभी हम जीवन में भगवान के अधीन होते हैं. हमें किसी पंडित की ज़रूरत पड़ती है, किसी हीलर की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है. Herein I believe understanding Wilber is a need. Ken Wilber is an American philosopher who believed in integral theory. He was the one who thought that there needs to be a synthesis of all kinds of knowledge base. So he integrated them from psychology to spirituality and even religious understandings. So what he did, he traversed from psychology to Neoplatonism and from Neoplatonism to Vedanta. So integral theory seeks to synthesize all types of knowledge and beliefs and tries to calculate against each other. So according to him, spirituality is not just a belief or faith, it's a developmental capacity.
that grows through the era of consciousness. He talks about magic to mythic, mythic to psychology, and how from one era to next era it transforms itself and ultimately synthesizes and integrates all of the past stages or understanding of spirituality. Welber was very clear. He said spirituality is layered. So now we can understand one thing, that no one can have it all at once. ये आपका लेयर वाले कंसेप्ट से हमें समझ में आता है, या सबसे पहले बात जो आती है दिमाग में वो ये है कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक हो या एक आध्यात्मिक परत वाला हो, ये दोनों में भिन्नता है. कैसे? हम समझते हैं पुराणों में वर्णित एक कथा के द्वारा. ऋग्वेद और पुराणों में एक कथा आती है महर्षि दधीची की. महर्षि दधीची के पास जब सारे देवता मिलके जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपकी हड्डियों की ज़रूरत है ताकि उससे वज्र का निर्माण किया जा सके, क्योंकि हमें वृता नामक असुर का वध करना है. अब आप जब एक आदमी के पास जाते हैं, उससे कुछ भी मांग करें तो वो कहीं ना कहीं संकोच करता है, जबकि जैसे ही यहाँ देवता महर्षि दधीची के पास उनकी हड्डियों का मांग करने भी जब जाते हैं, तब वो बिना किसी संकोच के वो बोलते हैं कि अगर मेरा ये शरीर जन कल्याण के लिए ज़रूरत है तो मैं देने को तैयार हूँ. तो ये हमें समझाता है कि कैसे एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक परत धारण करने वाला व्यक्ति में भिन्नता है. आज के समय में जब एक व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक बोलता है तो वो सिर्फ बोलता है और आध्यात्मिक आचरण नहीं रखता. तो ये हमें अंतर समझाता है कि एक आध्यात्मिक आवरण वाला आदमी सिर्फ दिखावा करना जानता है, महर्षि दधीची के जैसे अपने शरीर को त्याग करने के बाद भी आध्यात्मिक अनुभूति लेने की चेष्टा नहीं करता. The story of Maharishi Dadich reminds me of an incident. Last year, I attended a seminar of Miss Jaya Madan. She calls herself a spiritual coach. तो उन्होंने अपने सेमिनार में बहुत क्लियरली वोकली लाउड होके बोला कि मैं ये छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग मेरे को एक्सेस कर पाएँ, जो मेरे पास ज्ञान है उसको एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि इफ़ यू वांट टू अफोर्ड मी आई एम वेरी एक्सपेंसिव फॉर ऑल ऑफ यू. सो यू अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रास्ट ओवर हियर. एक टाइम पे गुरु ने अपनी हड्डियाँ दे दी, अपनी जान देने से पहले भी नहीं सोचा. बट नाउ when the leaders have become typical takers and they are no more givers. आप जब मंदिर भी जाते हैं तो पंडित जी आपको बहुत क्लियरली बोलते हैं, बेटा यहाँ जितना चढ़ाओगे ना उतना ही वापस मिलेगा. अब ये वार्निंग है, थ्रेटनिंग है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट है, ये डिसाइड हम लोगों को करना है. आपने जो जया मदान वाला एग्जाम्पल दिया, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि स्पिरिचुअल मार्केट में स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों बहुत अच्छे से इंटरमिक्स हो गए हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं बहुत महंगा हूँ, और महंगा इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट, मोनेटाइजिंग, मार्केटिंग, यही सेंस होता है उसका. अब हम समझते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिकता है क्या. तो जब हम आध्यात्मिकता का समझ रखना चाहते हैं, अधि और आत्म से बनता है अध्यात्म. तो ये बात करता है कैसे एक व्यक्ति आत्मा की खोज या आत्मा के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है. गीता में भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिकता या आत्मा के बारे में एक बहुत अच्छी समझ देते हैं. वो कहते हैं कोई महापुरुष ही है जो आत्मा को आश्चर्य के तौर पे सुनता, बोलता या समझता है, बजाय आज के जहाँ आध्यात्मिकता को कोई भी आदमी आश्चर्य के तौर पे नहीं देख रहा. उन्हें लग रहा है ये बहुत ही नॉर्मल सी वस्तु या नॉर्मल कमोडिटी है जिसको बेचा जा सकता है. तो भगवान श्री कृष्ण जब ये बात करते हैं कि कैसे आत्मा को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, आप जो भी समझ रहे हैं वो क्षणिक है, और कैसे आज के समय में लोग अपने आप को इस तरह से बेच रहे हैं कि वो अध्यात्म को पूरी तरह से समझ चुके हैं और वो पूर्णतया आध्यात्मिक है. So now we have understood what is spirituality, or at least tried to understand that. We have also looked into the definition of spirituality given by the greatest thinkers of our times. We also took reference of spirituality given in Gita. Now we need to understand or look into
the kinds of spirituality that the modern India has divided spirituality into. So primarily we would be dealing with 4 types of spirituality. And firstly, let us start with traditional or religious spirituality. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेजेस, प्रॉफिट्स, गुरु एक रास्ता चल चुके हैं और वो हमें बताते हैं कि किस रास्ते में चलना है. तो एक रास्ता जब फिक्स हो और शिष्य उसमें चलें तो वो रिलीजियस या ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी होता है. तो यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेजरली ऑर्गेनाइज रिलीजन से लिए गए हैं, बीट बुद्धिज्म, बीट हिंदुइज्म, बीट Islam, be it Judaism. Here in the market segment includes religious tourism, books, artifacts, symbols, donation based institutions. So आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तीर्थ में VIP पास का कंसेप्ट आ जाए तो उसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी में बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से इंटर कर चुका है. पुराने ज़माने में जब लोग तीर्थ करने जाते थे तो अलग अलग तरीक़ों से जाते थे, बहुत मुश्किल से पहुंचते थे. आज के डेट में वो तीर्थ एक टूरिज़्म प्रोग्राम बन गया है. लोग एक दिन में वो सारे सफ़र कर लेते हैं जो पहले 10-12 दिन में करते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास VIP पास नाम का बिजनेस टूल है जिसको वो स्पिरिचुअल एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं. Beautiful example of VIP darshan turning religious tourism or tirath into tourism. Now, what are the reasons for such an exponential growth? The reasons are the increase in the interest of spirituality. Everybody is interested in spirituality nowadays, from a kid to a grown up. The development of pilgrimage sites, globalization facilitating access to these sacred sites. Naming some of the richest temples of India, Tirupati Tirumala earns up to 1,20,000 crore rupees annually. Golden Temple earns around 500 crores. Ajmer Sharif Dargah earns up to 200 to 300 crores. Velanki Church from Kerala earns up to 100 crores annually. Now, when we see the religious market, it estimated to 17.25 lakh as of year 2024. And it is supposed to grow till 54.65 lakh crore by the year 2034 with a growth rate of 14.5%. Now we come to our second type of spirituality, that is the New Age spirituality. It started in 1970s and 80s, not an organized religion, but a mixture of mysticism, occult practices, astrology. And here in the market segment, it started with essential oils and traversed through tarot reading, energy healing. So ये market energy healing के market से energy healer तक जा रहा है. अब जहाँ भी healer शब्द आता है मतलब कोई ना कोई गुरु के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो let me take an example to explain how if unchecked a guru can dupe you or commit a fraud on the name of healing. तो नासिक में एक लेडी थी, उसे अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर करना था. तो उन्होंने सुना कि कानपुर में एक बाबा हैं जो नेगेटिव एनर्जी को भगाने का काम बहुत ढंग से करते हैं. तो वो उनको बुलाती है और बोलती है कि मैं आपको 2.5 लाख रुपए पे करने को तैयार हूँ. जो उनका चार्ज था, आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दीजिए घर से. बाबा राज़ी हो गए. 2.5 लाख लेने के बाद नेगेटिव एनर्जी तो नहीं गया, बट उनके घर से पैसा चला गया. उसके बाद वो लेडी को समझ में आया कि उनके वल्नरेबिलिटी को उस बाबा ने यूज़ किया है और उनके ऊपर फ्रॉड कमिट हुआ. तो वो जाती है नेशनल कंज्यूमर कमीशन में और फाइल करती हैं एक केस और वो बोलती है सिंस जो सर्विसेज प्रॉमिस थे वो मुझे नहीं मिले, दैट्स वाई इट्स अ फ्रॉड विच हैज़ बिन कमिटेड अगेंस्ट मी. तो यहाँ कमीशन को भी लगता है कि इवन इफ देयर इज़ अ बाबा, अ हीलर, a guru who promises that I will be providing you services and he is unable to do so, वहाँ उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगा. तो उनके ऊपर 2.5 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट तो वापस करने का जिम्मेदारी आया ही, प्लस उनको ये भी बोला गया कि आपको 50,000 और अधिक जुर्माना पे करना पड़ेगा. तो ये दर्शाता है कैसे अगर हम अनचेक्ड गुरु को मार्केट में रखेंगे या अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो मार्केट में कैसे एक आदमी
दूसरे आदमी पे फ्रॉड कमिट कर सकता है ऑन द गाइज ऑफ स्पिरिचुअलिटी. You will be shocked to know that crystal market in India is estimated over 1200 crores. From rose quartz for love, citrine for wealth, black obsidian for evil eye, we are obsessed with crystals. And now these crystals are not only sold on the shop shelves, but also on Instagram curated pages. What needs to be understood or looked upon here is I silently envy my relatives, my colleagues, my classmate, my batchmate. But I wear a black obsidian to protect myself from evil eye. Maybe it has just become very easy to blame the planets for our failures. See, everybody of us cannot be super successful, but that is not making any one of us less of human. So instead of laying our faiths on crystal, stone, healing practices, and gurus, we should rather lay that faith first on ourselves. Look for answers inside, and you can actually find solutions to each and every problem of yours. Basically, this market falls under the camp that is complementary and alternative medicines in India, and it is rising annually with a growth rate of 15 to 20%. With this, we come to our third type, that's mindfulness and meditation. And as the name suggests and the essence tells us, it's heavily drawn from Buddhism, Hinduism, and other secular practices and focuses on present moment awareness. Here in the market segment includes meditative practices, online meditation courses, retreat programs. इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, बाबा अशरफ का. तो बाबा अशरफ अचानक से मार्केट में आए. उन्होंने बहुत नाम कमाया और नाम के साथ पैसा भी कमाया. कैसे? वो एक काम करते थे. काम ये था कि वो बोलते थे कि मैं आपका आज्ञा चक्र को तुरंत एक्टिवेट कर दूंगा. अब ये वादा के कारण हर सेशन के लिए वो 1 लाख रुपया चार्ज करते थे. तो अगर एक आदमी 6 सेशन उनसे लिया है तो एटलीस्ट उन्होंने 10 लाख तक पे किया है. बाद में समझ में आया कि बाबा एक फ्रॉडस्टर थे और बाबा ने 15 करोड़ का स्कैम कुंडलिनी हीलिंग और कुंडलिनी एक्टिवेशन के नाम पे किया है. तो आपको समझना होगा कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन बाहर के लोगों से या किसी से प्राप्त किया जाने वाला कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट नहीं है. अगर ऐसा होता तो बुद्ध को 12 साल तक तपस्या नहीं करना पड़ता. वो घर बैठ के इसी तरह का कोई एप्लीकेशन में वो सीख चुके होते. और आपको ये समझ नहीं आ रहा है और आपके नासमझी के कारण ही ऐसे लोग आपके साथ फ्रॉड कमिट करते हैं. फ्रॉड कमिट होने के बाद आपको ये समझ आता है कि आप ठगे जा चुके हैं. माइंडफुल एंड मेडिटेशन. सो जनवरी में मैंने एक ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन की इन ऑर्डर टू अचीव दैट माइंडफुलनेस एंड टू मेडिटेट. क्लास में मैंने नोटिस किया जो टीचर हमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिखा रहे थे, जब वो हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग के साथ भी होता है, जब स्टूडेंट नहीं समझ पाते, एक स्टूडेंट सुनता है दूसरा नहीं सुन पाता है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं. बट हम जब टीचर से, हमारे इंस्ट्रक्टर से एक क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे थे टू सीक बेटर क्लैरिफिकेशन, ही वॉज गेटिंग एजिटेटेड, ही गॉट लिटरली इरिटेटेड. तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की और मेडिटेशन की और आप उसे सिखा रहे हैं, आप उसके टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, और आपके अंदर ही वो पेशेंस नहीं है, बिकॉज आई थिंक माइंडफुलनेस इज सपोज टू गिव यू दैट काम, meditation is supposed to give you peace. So it clearly denotes that you are just selling something. You are yourself not into it. This market is currently valued at around 1200 lakh crores. And it is supposed to reach around 5000 lakh crore by 2034. What are the reasons for this
exponential or exceptional growth of this market, the increasing interest towards self growth, the trend that talks about self care, more topics and more talks happening around about mental health. Now let's talk about Yoga and Ayurveda based spirituality, which combines several practices of the past and the present and keeps its way transforming. It starts with yoga mats and includes yoga training, retreat programs by several institutions. इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारी योगा और आयुर्वेदा की मार्केट में कि इसकी करंट वैल्यू इज एस्टिमेटेड ओवर 89,000 lakh crores and it is continuously rising at a rate of 19.4%. What can be the reason for such a growth? See, yoga these days does not only promise you physical fitness, it talks about eternal beauty, black hair, mobility in body till the age of 80. So I don't think so anyone can say no to this lucrative offer. The moment we hear about yoga, one individual's personification in the market is Baba Ramdev. जैसे योगा आप बोलेंगे किसी भी घर में आज के डेट में बाबा रामदेव का नाम सबसे पहले आता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिलीजियस क्लोथिंग या अपने भगवे को बहुत ढंग से यूटिलाइज किया है और इसके कारण उनका पॉलिटिकल कनेक्शन और पॉलिटिकल एफिलिएशन ने उनके लिए एक अलग शील्ड बना के रख दिया. शील्ड इतना मजबूत था कि he had the audacity to produce Coronil during the time of COVID. और उन्होंने बोला कि ये कोविड दूर कर देगा. जहाँ लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के कमी के वजह से, वहाँ एक ऐसा मेडिसिन आता है जो बोलता है कि ये आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा. डेफिनेटली उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया और अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो उनके 14 से ज़्यादा प्रोडक्ट को सस्पेंड किया गया. उनके फॉल्स एड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये दिखाना बंद कीजिए. तो ये सब हमें दिखाता है कि कैसे एक रिलीजियस क्लोथिंग अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड हो जाए तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएगा जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और लोगों के वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज करके एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल तैयार कर सकता है. You're absolutely correct. I think there are only two kinds of trends currently going on in India. One is to wear fake, cheap clothing produced in bulk, and other is the clothing of religion. The irony about both kinds of clothing is that it is making us more unreal and hollow from inside. Since we had a conversation in regard to how religious clothing affects the mindset, let us go back and understand how behavior changes when a person perceives power. तो 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट थे फिलिप जिम्बार्डो. उन्होंने क्या किया, एक सिमुलेटेड प्रिजन इन्वायरमेंट क्रिएट किया और 24 लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेलेक्ट किया. कुछ को प्रिजनर्स बनाया गया और कुछ को गार्ड्स बनाया गया. देखा ये गया कि गार्ड्स एब्यूजिव बन गए और प्रिजनर्स डिप्रेशन में चले गए. आप समझिए कि ये सेंस ऑफ एक्चुअलिटी नहीं थी. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको सही में प्रिजनर बनाया गया या सही में गार्ड बनाया गया. उनको बोला गया कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, आपको छोड़ दिया जाएगा. लेकिन आप इम्पोर्टेंस समझिए कि एक आदमी अगर ये परसीव करता है कि मैं पावरफुल हूँ तो भी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. और एक आदमी ये परसीव करेगा कि वो वल्नरेबल है तो उसमें भी चेंजेस स्टार्ट हो सकते हैं. सो अंडरस्टैंड हाउ सिचुएशंस changes you. In the same manner, if a particular robe, if a particular stamp, if a particular position provides you a perception of power, you might go beyond right and wrong, even start to sell bliss or spirituality. This powerful example of dominance and subservience gives all of us an opportunity to understand how wearing the color of religion or a clothing of religion is important in today's era and what kind of psychological impacts it does create. It makes you more ethical, it makes you more authentic, and in India currently it makes you more Indian than just normal Indians who do not wear this clothing of religion.
So now let's just explore the most fascinating aspect of this market, the current valuation and the growth rate. India's religious and spiritual market is currently valued at 4.8 lakh crore. It is expected to reach 12.4 lakh crore by the end of year 2034. Around 60% domestic tourists in India visit religious sites. There has been over 900 spiritual startups in India providing services like e-darshan, e-puja, kundali making, online prasad delivery, etc. etc. The market is currently estimated at 30,000 crore. In 2025, we saw Kumbh Mela. It attracted more than 400 million devotees. It generated the total wealth over 1.2 lakh crores. The Indian government is also not lagging behind to milk this industry. They have invested over 5,000 crores in schemes like Prasad and Hriday. Prasad stands for Pilgrimage, Rejuvenation and Spirituality Augmentation on Drive. Hriday stands for Heritage City Development and Augmentation Yojana, both to boost religious industry in India. Now let us understand how spirituality has turned into business and this business has turned into a cartel business model. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट ही मोटिव होता है. अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के तरफ से आ रहा हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रहा है तो वहाँ भी प्रॉफिट ही मेन मोटिव है. तो यहाँ कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो कार्टेल लाइक डोमिनेंस शो करते हैं. फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि या ईशा. ये इतने पावरफुल हैं कि छोटे प्लेयर्स कभी उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते. अब समझने की बात यह है कि कैसे एक बिजनेस एक कार्टेल में बदलता है. स्पिरिचुअलिटी बिजनेस बना क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ. द मोमेंट दैट इन्वेस्टमेंट और द मोमेंट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गोज लेस अकाउंटेबल इट बिकम्स ए कार्टेल. समझते हैं हम ड्रग के एग्जाम्पल से. तो दुनिया में जब सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो ड्रग कार्टेल का एग्जाम्पल आता है. क्यों? क्योंकि लीस्ट अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे. इन द सेम मैनर व्हेन वी टॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी देयर इज लीस्ट अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि कोई भी आके आपको बाबा का दिखावा करके या आध्यात्मिक आवरण का दिखावा करके आपको ये बोलता है कि मैं ये जानता हूँ तो आप बिलीव कर लोगे. क्योंकि इंस्टाग्राम या यूट्यूब में उसके एल्गोरिदम को इतनी अच्छे तरीक़े से एम्पलीफाई किया जाता है कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सही आदमी है. और इस हिसाब से ये कार्टेल बिजनेस वर्क करता है. कार्टेल बिजनेस होता क्या है? हमारा कंपटीशन लॉ डिफाइन करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स. एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जब कुछ मेजर एंटरप्राइज, रिच एंटरप्राइजेज इन द मार्केट क्रिएट अ डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी वजह से छोटे प्लेयर्स मार्केट में रह तो सकते हैं बट वो कभी भी स्ट्राइव नहीं कर पाएंगे. तो इससे होता क्या है? ये बिजनेस मॉडल अपने लेवल पे चलेंगे और इनके 10 अलग अलग तरीके के बिजनेस होंगे. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जब मैं इंटरनेट बोलती हूँ तो हमारे दिमाग में जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है जियो का. क्यों? इंटरनेट तो एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है, आइडिया प्रोवाइड कर रहा है. इसके पीछे एक रीजनिंग है. व्हेन जियो लॉन्च्ड, दे लॉन्च्ड विद एन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस. दे मेड इंटरनेट फ्री फॉर एवरीबडी. जिसकी वजह से क्या हुआ? जितने सारे प्लेयर्स छोटे छोटे मार्केट में थे जो आपको पहले इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे, उनको या तो अपनी एक्सेसिबिलिटी मार्केट की कम करनी पड़ी या वो प्लेयर मार्केट से आउट ही हो गए. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक कार्टेल लाइक डोमिनेंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से कुछ गिने चुने एंटरप्राइजेज जो स्ट्रॉन्ग हैं वो मार्केट में सर्वाइव करते हैं और छोटे छोटे एंटरप्राइजेज रहेंगे बट वो कभी उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे. And exactly like this, when you talk about spirituality, you listen to the amplified voices on internet, on Instagram, on YouTube. And these businesses are Art of Living, as mentioned by Shivam, Isha Foundation, Patanjali. तो ये जो एम्पलीफिकेशन का बात आपने किया तो हम समझते हैं कि कैसे मार्केट में जो लोग नहीं भी जानते हैं अपने आप को एम्पलीफाई करके प्रूव कर देते हैं कि वो जानते हैं अध्यात्म को.
तो यहाँ तीथा सुत्त का एक कहानी सबसे मशहूर है। वहाँ बोला यह जाता है कि 5 अंधे लोग हैं जिनको एक हाथी के बारे में बताना है कि वो कैसा होता है। अब अंधे व्यक्ति देख तो सकते नहीं हैं, तो वो हाथी के हर बॉडी के अलग अलग पार्ट को छू के समझते हैं कि हाथी कैसा होगा। किसी ने पैर छुआ, किसी ने पेट छुआ, किसी ने कान छुआ, और अलग अलग पार्ट को वो छू के समझते हैं कि हाथी कैसा होगा। अब समझने की बात ये है, 5 लोग में से किसी को भी पूरी तरह से ये जानकारी नहीं है कि वो हाथी कैसा होगा, लेकिन पांचों कॉन्फिडेंट हैं कि ये हाथी इसी तरह होगा। अब आप समझिए आज के आध्यात्मिक लोगों के बारे में, उन्हें कुछ भी इस जगत में आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो जो बोल रहे हैं उसी को सच की तरह प्रदर्शित करते हैं। वो बोलते हैं मैं जो आध्यात्मिक समझ रखता हूँ, जो तुम्हें पास कर रहा हूँ, वही एकमात्र सच है, और उसके अलावा जितनी भी बातें हैं सारी मिथ्या है। तो एक ज़माना था जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आत्मा की समझ को आप आश्चर्य के तौर पे देखोगे तब आप महापुरुष या आध्यात्मिक हो। और आज के डेट में एक आदमी अपना फ्रैगमेंटेड आइडिया जो कि कंप्लीट नहीं है वो भी प्रदर्शित करके अपने आप को ये एल्गोरिदम के मदद से आध्यात्मिक व्यक्ति प्रूव कर दे रहा है। Since we are obsessed with confirmation bias, spirituality today can be easily commodified, accumulating the principles of ancient science and modifying it to cater the needs of the modern consumers. It is just like the understanding of a blind man of an elephant. How? Every blind person would understand a part of elephant and perceive it like that. So everybody knows, but nobody knows it fully, or nobody knows it wholly. यहाँ पे we need to remember a very old proverb. Half knowledge is more dangerous than no knowledge. ये आपका जो प्रोवर्ब है हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो आई बिलीव हाफ स्पिरिचुअलिटी इज मोर डेंजरस। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ हाफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साथ यहाँ बिजनेस इंटरमिक्स्ड हो गया है। तो ना तो वो बिजनेस रहा, ना तो वो स्पिरिचुअलिटी रहा। इसको और ढंग से समझने के लिए अगर हम जेरेमी कैरेट के बुक सेलिंग स्पिरिचुअलिटी को पढ़ते हैं तो विल अंडरस्टैंड दैट हाउ स्पिरिचुअलिटी इज अंडर द ग्रास्प ऑफ capitalist frameworks and how these capitalists are utilizing them to resell, rebrand or sell bliss in the market of spirituality. यहाँ पे the second book that needs to be considered is The Wellness Syndrome by Carl Sedestron. He explains very beautifully in this book that how as a society we put pressure on each and every individual to talk about wellness, to be obsessed with wellness. हम हर एक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि तुम अपने बारे में सोचो, खुश रहो, पहले अपने बारे में सोचो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उससे बात मत करो, अपने आप को कन्फाइन कर लो। बट शायद यहाँ पे वी आर फॉरगेटिंग आवर लर्निंग्स। हमारी लर्निंग हमेशा से ये थी कि खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज कैसे हो गया कि खुशी अपनी किसी को मत दिखाओ, नज़र लग जाएगी, और दुख सबको दिखाओ, सबके साथ रो। दुख बांटने से बढ़ता है, बट वी नीड टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू रन विद द सोसाइटी. So your happiness will get doubled when you start focusing on the happiness of everybody around you, not just you as a sole person. In our previous episode, we had discussed about the limbic capitalists. So limbic capitalists are those people who know the psychology of the buyer and using that or utilizing that, they market their product. अब समझिए कि ये सेम लिम्बिक कैपिटलिस्ट जो साइकोलॉजी ऑफ पीपल समझ रहे थे, वो अगर रिलीजियस मार्केट में आ जाए तो क्या होगा। तो ये आते हैं और बनाते हैं एक नया मॉडल जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल या होलिस्टिक वेलनेस रिट्रीट। तो आपको याद होगा पुराने समय में आश्रम का कंसेप्ट था, जहाँ लोग गुरुकुल में जाते थे, आयुर्वेद सीखते थे, वहाँ शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान, सारे तरीक़ों से अपने आप को निपुण करते थे। अब वो मार्केट जहाँ पर आध्यात्मिक विचारधारा थी और आज का मार्केट जहाँ बिजनेस
सबसे टॉप एज पे बैठा हुआ, अगर ये दोनों मिक्स हो जाए तो कैसा दिखेगा, ये होलिस्टिक वेलनेस रिट्रीट एक सबसे सुंदर एग्जाम्पल है उसका। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको आयुर्वेद, ध्यान से लेकर सस्टेनेबल एकोमोडेशन तक हर चीज़ एक जगह में देने का बात चलता है। नाम में सस्टेनेबिलिटी भी है और होलिस्टिक भी है, बट ट्रस्ट मी, द प्राइजेज आर नॉट एट ऑल होलिस्टिक और सस्टेनेबल। आपको जंगल में रुकवाएंगे, आपके पूरे रहने में एक्सपेंस जो इनकर होगा वो 1500 रुपये से 2000 रुपये तक होगा, बट उसके लिए दे विल चार्ज यू 1.5 लाख 2 लाख रुपीज़ फॉर अ नेचुरल रिट्रीट। आपको इन्वायरमेंट से वो क्लोजनेस बढ़वा रहे हैं, ऐसा कह के वो ये करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, वी आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर डिजाइंड ब्रिलियंटली। आपके पास हफ्ते भर टाइम नहीं है, आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर लो। आपके पास वीकेंड में टाइम नहीं है, आप स्पेशल वर्कशॉप्स ले लो। आपके पास वर्कशॉप करने का टाइम नहीं है, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, कभी भी कहीं भी बैठ के सुन लो। और अगर उसका भी टाइम नहीं है ना, तो क्रिस्टल ले लो, उसे घर में रख दो, आप अमीर हो जाओगे। असेंशियल ऑयल ले लो, आज लगाना कल क्लेंजिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ दे हैव ट्रैप्ड अस। कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम बच के निकले, तो निकले कहाँ से? The moment we talk about these retreat programs, the first name which comes to my mind is of Sri Sri Ravi Shankar's institution Art of Living, which was founded in 1981. The focus or purpose was simple: to disseminate spirituality. But the institution intermixed its value with बिजनेस मार्केट। ये पहला प्रोग्राम था जहां बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी को इंटरमिक्स करके रिट्रीट प्रोग्राम इंडिया में डेवलप किया गया। डेफिनेटली स्पिरिचुअल बेस पे था, बट एवर्जन्स हर जगह आते हैं, यहाँ भी आए। तो व्हाट वाज सीन दैट द इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड चार्जिंग मोर देन 30,000 फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स लाइक हैप्पीनेस प्रोग्राम्स एंड इवन मेडिटेटिव कोर्स। दे सोल्ड जेनरिक प्रोग्राम्स विद हायर फीस टैग जो आप YouTube में नॉर्मली वॉच कर सकते हैं। इवन पॉन्जी स्कीम्स वहाँ स्टार्ट हुआ। उसमें क्या होता है कि एक आदमी को बोला जाता है आप दूसरे वॉलंटियर को लाएं या दूसरे पार्टिसिपेंट को लाएं, और इससे शिष्य बनाने वाला धंधा भी बहुत अच्छे ढंग से फैला। इवन सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज किया था इंस्टीट्यूशन को कि आप गलत हेल्थ क्लेम्स को मोनेटाइज या मार्केट नहीं कर सकते। सो विद दिस वी अंडरस्टैंड हाउ an institution which starts with a spiritual base, if intermixed with business, might lose its purpose. तो इनको देख के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने रिट्रीट प्रोग्राम डेवलप किया, और इवन दो इनका तो एटलीस्ट पर्पस स्टार्ट हुआ था स्पिरिचुअलिटी में, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने तो स्टार्ट ही किया एक बिजनेस मॉडल पे। We just saw how spirituality met business in 1981 with the formation of Art of Living. अब हमें समझ में आ गया कि इनका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे ये बिजनेस मॉडल स्ट्राइव करता है। द सेकेंड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज़ दैट हमारी तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको ये लोग मोनेटाइज करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन के खड़ा हो जाता है। इसमें पहला पॉइंट आता है, दिस पीपल प्ले ऑन मास मोनेटाइजेशन ऑफ फेथ। इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है, हम सबके घर में पूजा होती है, हम सबके घर में मंदिर है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जो भी हैं, आपको पूजा करना शुरू से सिखाया जाता है। दैट इज़ इनकलकेटेड इन अस सिंस द बिगिनिंग। तो अब होता क्या है, पूरी कंट्री जब फेथ पे स्ट्राइव करती है तो वो उस कंट्री को वल्नरेबल भी बनाती है कि उस फेथ का मिस यूटिलाइजेशन हो पाए। हम लोग के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी यूजुअली कंफ्यूज द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस विद पर्सनल फेलियर्स। इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारी, पॉपुलेशन इज़ एक्सप्लोडिंग, तो कभी इन्फ्लेशन भी होगा, कभी मार्केट अच्छी भी चलेगी। बट जब इन्फ्लेशन होगा और नौकरी नहीं मिलेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो हमारे दिमाग में चलेगा अरे यार कुंडली में शायद कोई दोष है, चलो पूजा करा लेते हैं। नौकरी नहीं लग रही है, ये स्टोन पहन के देखता हूँ शायद नौकरी लग जाए।
वी आर रनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. हम लोग डिजिटली इतने डीप रिलेशनशिप्स में हैं कि हम रियल लाइफ में ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं. और अब हैं तो पर्सनैलिटी तो ह्यूमन वाली है. वी विल अल्टीमेटली क्रेव दोज ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स. अब जब वो फेल होती हैं तभी भी हम ब्लेम डालते हैं प्लानिटरी मूवमेंट्स पे कि शायद सैटर्न का मूवमेंट थोड़ा अलग है तो अभी मेरे स्पाउस के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है. इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर आंसर्स दैट दिस इज द प्रॉब्लम, वी नीड टू लुक एट इट साइंटिफिकली and decide what is going wrong, where we are going wrong. We are just blaming everything on the planet. It is good to be spiritual, but it is better to be balanced with spirituality. As you just pointed out that how people are moving externally to understand how spirituality works, and when they are showing signs of distress, they are trying to find external ways to solve those. अब ये वेज खोजने के चक्कर में वो आ जाते हैं स्पिरिचुअल फास्ट फूड के मार्केट में. पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि आप साधना करो, आप देवता का पूजा करो, आप डिवाइन प्रैक्टिसेस में जाओ. और आज के डेट में अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखें तो लोग बोलेंगे आप 10 दिन के अंदर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो. तो ये अंतर है एक डिवाइन सोच या स्पिरिचुअल सोच में और एक फास्ट फूड को इम्बाइब करने में. आप समझिए फास्ट फूड हम खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है? शून्य. इन द सेम सेंस व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल फास्ट फूड, इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल. आपको लगेगा कि ये तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत सिद्धि मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग सालों साल तपस्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर वो सिद्ध होते हैं. क्या ये पॉसिबल है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी भी मोड पे एक आदमी आपको शिष्य बना के 3 घंटे में ही सिद्ध बना दे? तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रख रहा है समाज पे कि समाज क्या खोज रहा है. अगर आपका खोज अध्यात्म है तो वो कभी भी बाहरी नहीं हो सकता, वो आंतरिक ही होगा. और इसीलिए आपको स्पिरिचुअल फास्ट फूड से ज़्यादा स्पिरिचुअल फूड के और उन्मुख होना पड़ेगा. The next reason or the next ground where these people strive on is इमोशन ड्रिवन एक्सप्लॉयटेशन. जॉन वेलवुड बोल के एक थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया, बाईपास स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी बाईपास. उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिंक किया पॉजिटिव टॉक्सिसिटी से. उन्होंने बोला कि हम कभी कभी स्पिरिचुअलिटी पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम और किसी चीज़ को देख ही नहीं पाते, और वो इतनी पॉजिटिविटी बना देता है कि वो अल्टीमेटली बहुत टॉक्सिक बन जाता है. सो अब आप खुद सोचिए, जब इतने स्पिरिचुअल हीलर्स बढ़ रहे हैं, इतने गुरु हैं, इतनी थेरेपीज हैं, तो सुसाइड के रेट्स इतने कैसे बढ़ रहे हैं? इसमें एक लॉजिक है. जब आप अपनी सारी पावर किसी और के हाथ में रख देते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की सारी पावर्स किसी पंडित के हाथ में, किसी कुंडली के हाथ में, किसी क्रिस्टल के हाथ में, किसी प्रैक्टिस के हाथ में, देन यू लूज होप. यू लूज होप टू क्योर योर सेल्फ. तब क्या होता है? तब कोई रास्ता नहीं दिखता एंड यू एंड अप एक्सप्लॉइटिंग योर ओन सेल्फ. तो ये याद रखना, जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी उतना महंगा सोल्यूशन ये मार्केट आपको देगी. तो इंस्टेड, अगेन आई वुड से दिस, अगेन आई वुड रिट्रेट दिस, instead of looking for solutions outside, first look into the problem. Universe is made of the elements out of which we are also made. The elements are same. So when there is a problem, there is supposed to be a solution. Seeking solution, seek it within you. So let us talk about how cart-like dominance works in the society. एक ऑपरेशर के लिए एक माइंड जो कि वल्नरेबल है, सबसे इजी टूल होता है या सबसे इजी सब्जेक्ट मैटर होता है अट्रैक्ट या एक्सप्लॉइट करने के लिए. तो अब आप समझिए, मार्केट में ऐसे प्लेयर हैं जो आपके इमोशंस को डेटा या एल्गोरिदम की तरह समझते हैं, और जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर सर्च करेंगे कि मैं इस तरह के दुख से गुजर रहा हूँ, वो उसको समझ जाएंगे और एम्पलीफाई करेंगे. सेम लेवल ऑफ गुरुज जो उनको पे करते हैं कि अगर ये आदमी वल्नरेबल है तो मेरा जो समझ है वो उसके पास करो.
So we are talking about structures like AstroTalk who understand your points of vulnerability and magnify their voice through these algorithm systems. The next one is loss of depth. हम लोगों ने किसी भी चीज़ को ना डीपली सोचना छोड़ दिया है. ऊपर ऊपर से देखा, ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन निकाल लिया और ऊपर ऊपर से निकल गए. मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी कि वी आर ओनली ऑप्टिंग फॉर बाईपासिंग द प्रॉब्लम्स, नॉट गोइंग राइट विद इन इट. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज़. यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके एल्गोरिथम्स जैसा कि शिवम ने मेंशन किया इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि व्हेन यू लाइक, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग थ्रू अ रील एंड यू आर स्क्रॉलिंग अ रील, अचानक से एक इंस्पिरेशनल रील आती है, यू स्पेंड 5 to 6 seconds ओवर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर रील, बिंगो दे हैव कॉट यू एंड नाउ यू विल बी बॉम्बार्डेड विद दोज रील्स. उसके बाद आएंगे गुरुओं के सजेशन, उसके बाद आएगी प्रोडक्ट मार्केट और उसके बाद आएंगी सेल्फ हेल्प गाइड्स. सो वो आपको अपने अंदर जाके वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का मौका नहीं देगा, वो आपको बाहर ही बाहर में घुमाता रहेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी कैन बी कंफर्टिंग बट इट कैन नॉट बी द अल्टीमेट सोल्यूशन. सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना है, और अगर आपको सोल्यूशन नहीं ढूंढना होता तो भगवान ने आपको यहाँ इंसान बना के नहीं भेजना था, उसने किताबें नहीं बनानी थी, उसने एक सेट रूल बनाना था कि सब सुबह उठेंगे, पूजा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और रात को सो जाएंगे मेरा नाम लेके. उसने किताबें बनाई, यूनिवर्स बनाया, साइंस बनाई, कुछ सोच के बनाया. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग solely on one food, we need to understand, we need to look into different directions in order to identify and grow. I believe now it's the time to understand how spirituality turns our. They wore saffron robes. They spoke of moksha and meditation. They promised peace and enlightenment, a path to God. But behind the curtain of incense smoke lays a rotting truth. This is not the story of spirituality. This is the story of sex, silence, and scam, sold in the name of God. In India, gurus are often revered close to gods. One glance can cure all your diseases. But what lies behind this saffron curtain is a hideous, hideous truth. In 2013, a 16-year-old girl accused Asharam Bapu of rape. She was not the only one, but the only one courageous enough to speak about it. And currently, Asharam Bapu serves a jail imprisonment for raping a minor girl. जब भी हम बात कैलाश का करते हैं तो दिमाग में एक ही चित्र अंकित होता है, भगवान शिव का, कि वो बैठे हैं और वहाँ ध्यान कर रहे हैं. और ये एक रिलीजन का बात नहीं है, बीट चाइनीज़, बीट तिब्बत, बीट इंडिया, विथ डिफरेंट प्रॉफिट्स और डिफरेंट सेंट्स, सबका मानना है कि वो एक स्पिरिचुअल एम्बॉडीमेंट है. अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा आदमी आता है जो कैलाश के नाम पे अपना कंट्री बिल्ड कर देता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्वामी नित्यानंद, who faced several charges like sexual abuse, and while facing he ran away from this country and built a new country named as Kailasha with a new flag, new stamp and new color. The next contender in this list is very famous. You all know him with this meme. With a designer suit, crowded stadiums and sermons in English and Punjabi, the self-proclaimed prophet Baljinder Singh. He is currently on a run after being charged with the offense of rape, sexual abuses, visa frauds, and even a false claim to cure deadly diseases. So let us talk about MSG और राम रहीम सिंह जी इंसान. एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये तक क्लेम किया है कि ये खुद भगवान है, और इनके ऊपर जो चार्जेस आया वो भगवान जैसा नहीं है. चार्जेस आया सेक्सुअल एब्यूज़ का, और जब वो कोर्ट में जाते हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप सेक्सुअल ऑफेंडर हैं, तो वो ये बोलते हैं इवन इफ़ इट्स प्रूव्ड
आई हैव ऑल्सो डन प्लांटेशन. सो आप एक आदमी के समझ को समझिए कि जो अपने आप को स्पिरिचुअल समझा रहा है या गॉड समझा रहा है, वो ये बोल रहा है कि इवन इफ, या अगर मैंने रेप किया भी है तो मैंने सिंस प्लांटेशन किया है तो मुझे अलाउ किया जाए और मुझे जेल में नहीं रखा जाए. डेफिनेटली कोर्ट इसको ग्राउंड फॉर बेल नहीं समझती है, इसी कारण वो आज जेल के अंदर है. Now, I would like to conclude this discussion by asking the question of the decade. Can spirituality be actually bought or sold? Or is this just an illusion created by the major stakeholders of this market? I think this is the greatest illusion. The market has learned to sell you everything, be it a product or bliss. They are teaching or training you to search spirituality or bliss outside. But the truth is, it's always inside, and you need to do the inner walk to understand it in a more better sense. So I think we end it here that spirituality is a journey within yourself. So next time when you think about spirituality or think about God, I would like you to remember the words of Khalil Gibran. And if you would know, God be not therefore a solver of riddles. Rather, look about you. You shall see him playing with your children. And look into the space. You shall see him walking in the clouds, outstretching his arms in the lightning and descending in the rain. You shall see him smiling in flowers, then rising and waving his hands in trees. Thank you for watching this video. If you like our content, please like, share and subscribe.